Hi, this is Dr. Tufail Chandio, and I welcome you all in the class of Introduction to Literature. In this class, we would talk about what is a short story, its key features, and what are the key parts of a short story, where from it emerged and how it came to become as an independent genre in English literature. If you look at in our previous class, we talked about what literature is and elements of literature, themes of literature, classification of themes, and author in literature, society in literature, and style, and then autobiographical components. But now we are going to enter into the different genre or different kinds of literature. When we classify literature, जब हम literature को classify करते हैं, we find it in the prose and poetry. So two major classes are parts would be prose, what we cannot sing, and the poetry, what we can sing. And I have talked a lot about poetry. Poetry के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है कि poetry होती क्या है, poetry के अंदर rhyme क्या होता है, rhythm क्या होता है, stanza क्या होते हैं, meters क्या होते हैं, किस तरीके से poetry वजूद में आती है. So we have discussed it a lot. And now we are switching towards a prose. और prose में जो मजीद जो उसके जानरा हैं, prose में हमारे पास ड्रामा है, हमारे पास नावल है, हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज हैं, और उसके अलावा फिर ट्रेवल लॉग और अपना इस तरह की चीजें they would fall into the category of prose. So this class, what we are in today, this primarily focuses on what is a story and what are the components of a short story we could add and how we could understand. So when we look at a short story, actually in today's class we will cover these areas, that what short story is, and as a genre, then what is and the origin and story history, then components of short story, then how to read a short story and activities, etc. So being a genre, this word genre is a type of literature. It came from French word type. So short story has emerged as a genre in the literature. Suppose we have a poetry as a genre, novel is a genre, drama is a genre. So this is also a kind of a genre, okay, and it emerged in this literature, especially in the Western literature. And it became very famous in the 19th century and bears their names like Musafan and Chekhov or Poe. So these are very famous short story writers that Musafan or Chekhov from Russia and this Edgar Poe, they were considered to be a wonderful short story writer. So 19वीं सदी में ये वजूद में आती है, और जिस तरीके से हमारे पास दूसरे यानास हैं, नावल है, ड्रामा है, उस तरीके से शॉर्ट स्टोरी भी एक याना के तौर पे सामने आती है. अब शॉर्ट स्टोरी है क्या? ये फिक्शनल वर्क है. फिक्शनल वर्क होता है कि जो हम मनगढ़ंत एक कहानी बनाते हैं. A prose that's shorter in length in a novel. अब नावल और शॉर्ट स्टोरी में फर्क ये होता है कि नावल लंबा होता है, तवील होता है, शॉर्ट स्टोरी मुख्तसर होती है और छोटी होती है. The format of short story is often narrative that tends to be more pointed than longer works of fiction. अब जो बेसिक फर्क दूसरा ये है कि नावल तवील है, शॉर्ट स्टोरी छोटी है. दोनों कहानी नैरेटिव, दोनों कहानी सुनाते हैं, both are narrative, but the difference is that novel is a lengthy, so it can ramble, वो स्लो चीजें जो करता है. शॉर्ट स्टोरी मुख्तसर होती है, so it needs to be pointed. क्लियर एक बात को करके और बात को मुख्तसर करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, स्पेस कम होता है, थोड़े वर्ड्स के अंदर हमने उस स्टोरी को खत्म करना होता है. So because then it is pointed longer than works of fiction such as novelia. अच्छा, आप देखिए, एक तो नावल है जो बहुत तवील है, एक शॉर्ट स्टोरी जो मुख्तसर है. अब इसके दरमियान में एक चीजें आती है जो ना तो शॉर्ट स्टोरी की तरह छोटी होती है, ना नावल की तरह लंबी होती है, बड़ी होती है. तो हम उनको नावेलिया कहते हैं, और ये भी 20वीं-21वीं सदी में चलो वो लिखी गई है और पहले भी लिखी गई है. So novels are books. Usually a short story focuses on one incident. It's a single plot, single setting, and small number of characters
covers a short period of time. देखिए अब चूंकि हमने मुख्तसर लिखना है तो हम इसमें जो है ना वो सिंगल प्लॉट लिखते हैं. सिंगल प्लॉट जिसको सिंपल और कम्प्लेक्स प्लॉट कहते हैं. सिंपल प्लॉट वो होता है जिसमें एक स्टोरी चल रही होती है. कम्प्लेक्स प्लॉट वो होता है जिसमें 2, 3, 4 स्टोरी चल रही होती है. एक तरफ स्मगलर्स का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा था, दूसरी तरफ हीरो हीरोइन के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो दिखाए जा रहे थे, और तीसरी तरफ पुलिस वाले की जो उनको हीरोइन के साथ जो है ना वो स्मगलर के साथ लड़ रहा है उनके प्रॉब्लम चल रहे होते. तो 2, 3, 4 स्टोरीज इकट्ठी चले तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लॉट. मगर एक ही स्टोरी पे अगर आप फोकस करें तो दिस इज सिंगल प्लॉट एंड दिस इज सिंपल प्लॉट. सो चूंकि शॉर्ट स्टोरी मुख्तसर है तो हमें सिंगल प्लॉट चाहिए और सिंगल सेटिंग चाहिए. सेटिंग, व्हाट इज सेटिंग? सेटिंग वो जगह जहाँ पे कहानी शुरू होती है, वो एरिया, वो जगह, वो प्लेस, वो सूरत हाल, वो मार्केट, वो पहाड़ों का इलाका है जहाँ पे कहानी शुरू हो रही है. कोई किसी गांव में शुरू हो रही है, किसी शहर में शुरू हो रही है, बट आपको मुख्तसर करके उसी चीज पे फोकस करके और इस कहानी को खत्म करना होता है. एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, डेफिनेटली नावल में आपके पास बेताशा कैरेक्टर्स होते हैं, but story में भी नहीं. Small number of the characters to cover the short period of the time. It's not a lengthy. Okay, when he this Edgar Allan Poe in his essay The Philosophy of Composition, he said that a short story should be read in one sitting, anywhere from half hours to 2 hours. Okay, बोला कि आधे घंटे से 2 घंटे के दरमियान खत्म होनी चाहिए. In contemporary fiction, a short story can range from 1,000 words to 20,000 words. 1,000 से लेकर 20,000 वर्ड्स तक. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान एक शॉर्ट स्टोरी फॉल करती है. अब जो है ना वो शॉर्ट स्टोरी को जब आप डिफाइन करते हैं इन डिफरेंट वेज, लेकिन पीस ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स यूजुअली लेस देन 5,000 वर्ड्स, मैक्सिमम 5,000 वर्ड से कम होती है. दैट कंटेन दी बेसिक एलिमेंट्स. उसमें कैरेक्टर है, उसमें सेटिंग है जहाँ पे शुरू हुई है, फिर प्लॉट है. प्लॉट क्या होता है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स जिससे वाकयात होते हैं. मकसद प्लॉट आपको ये बताता है कि हुआ कैसे एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया, दूसरी ने तीसरी को जन्म दिया. तो प्लॉट इज ए सीरीज ऑफ एक्शन व्हिच टेक प्लेस इन अ नॉवेल एंड स्टोरी एंड फिल्म. किसी मूवी, ड्रामे और नॉवेल के अंदर ये चीजें जो होती है. तरतीब जो ना, आप जो है ना वो शाहरुख जो है ना वो छोटा है, पढ़ने चला गया तो पारू से अलग हो गया, पढ़कर वापस आया तो उसके वालिद ने उसको एक्सेप्ट पारू को नहीं किया तो वो पारू को छोड़कर चला गया. फिर पारू ने दूसरी शादी की जो ना उसने भी शादी कर ली, अब जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया. तो ये चीजें जो है ना एक दूसरे के साथ जो है लिंक होती है. तो एक एक्शन दूसरे एक्शन को जन्म देता है और वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड प्लॉट, सीरीज ऑफ एक्शन. अब वो सीरीज ऑफ एक्शन आपस में कनेक्टेड है तो हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्लॉट है, ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट है. अगर वो कनेक्टेड नहीं है, जस्ट जो है ना वो रैंडमली उनको जो ना आपस में किया गया है. मिसाल के तौर पे अब एक इनऑर्गेनिक प्लॉट क्या होगा? एक हीरो है, बदीन में काम कर रहा है, यहाँ से चला गया कराची में काम कर रहा है, वहां से चला गया दुबई में काम कर रहा है. अब मसला ये है कि उसमें कराची, बदीन, दुबई, उसमें कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन चूंकि वही हीरो इधर मौजूद था, उधर मौजूद था, उधर मौजूद था, तो हीरो की वजह से उसमें एक लिंक बना हुआ है. अदरवाइज उसके इवेंट्स के अंदर, उसके वाकयात के अंदर जो हो रहे हैं उनके अंदर कोई लिंक नहीं होता. सो शॉर्ट स्टोरी के अंदर वी हैव दिस प्लॉट एंड उसमें प्लॉट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तनाज़ा होता है, झगड़ा होता है, जिसी पे वो जो है ना वो दोनों के दरमियान एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हमने आगे चल के रेजोल्यूशन करनी होती है, हल कराना होता है. और उसमें फिर उसी कॉन्फ्लिक्ट का एक क्लाइमेक्स आता है, उरूज पे जाता है, उसके बाद वो फिर रेजोल्यूशन की तरफ जाता है. उसके बाद उसमें डायलॉग होते हैं. प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट कौन होता है? जो आपका हीरो होता है, जो उस हालात, उस कॉन्फ्लिक्ट का विक्टिम होता है. एंटागोनिस्ट क्या होता है? जो विलन होता है, जो उस तरह के हालात और वाकयात पैदा करता है जो प्रोटागोनिस्ट को तंग करते हैं. तो this is how the short story moves. Okay. Short story is a brief work of fiction. The short story resembles the longer novel but generally has a simpler plot and setting. Okay, ये novel की तरह दिखती है लेकिन इसका plot simple होता है. In addition, the short story tends to be revealed at this characters of a crucial moments rather than develop through many incidents. Okay, मैंने पहले बताया कि ये एक event को focus करके चलती है. This is a form of prose fiction. क्रिएटिव नॉन पोएटिक काइंड ऑफ कंपोजिशन. ये प्रोज है, ये पोइट्री नहीं है, नॉन जो इसकी कंपोजिशन है. अगर आप इसके ओरिजिन की जाएंगे तो आपको देखेंगे कि इसका जो बहुत से हमारे पास फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी इंक्लूडिंग मिथ. अब मिथ क्या होती है? मिथ ये होती है कि एक ऐसी कहानी जिसमें लोग यकीन रखते हैं और जिससे समझते थे कि दुनिया अगर चलती थी इस तरह चलती थी. मुख्तलिफ सूरज गिरन, चांद गिरन, कायनात की वजह से ज़िलज़िला आता है कि खुदा का बेल जो है ना वो इस कायनात को, जमीन को अपने सींग पे उठाकर खड़ा हुआ है और वो जब सींग बदली करता है तो फिर ज़िलज़िला आता है. इस तरह की चीज़ें मिथ होती थी, लोग उसको मानते थे, यकीन करते थे. यूनान के अंदर तो वो हर चीज़ का एक खुदा मानते थे और इसलिए कहते थे उस जो ना
तूफान आता है तो तूफान का खुदा है, ज़लज़ला आता है तो ज़लज़ले का खुदा है। इस तरह वो कायनात को समझने के लिए उन्होंने अपने कंसेप्ट बनाए होते थे, वो मिथ होते हैं। फेबल क्या होते हैं? फेबल एक कहानियाँ होती हैं जिसके किरदार या जानवर होते हैं या प्लांट्स होते हैं या वो चीज़ें होती हैं जो बोल नहीं पाती, वो किरदार होते हैं, उसके थ्रू हम जो है ना कोई अपना एक मॉरल वैल्यूज या कोई सबक लोगों को सिखाते हैं। वी कॉल इट फेबल्स। मिसाल के तौर पे एक जो है ना वो आप ये कहें कि चिरंती की और एक कबूतर की दोस्ती हुई और एक दिन चिरंती डूब रही थी तो उसने उसको पत्ता देकर बचाया और उस दिन शिकारी कबूतर को मारा था तो चिरंती ने शिकारी को काटा और उसको बचा दिया। और इससे हमें ये सबक मिला कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो दीस आर कॉल्ड फेबल्स, जिसमें किरदार वो होते हैं जो डायलॉग बोलते हैं बट दे आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। देन वी हैव लीजेंड्स। ओके, व्हाट आर लीजेंड्स? ओके, लीजेंड्स एक कहानियां होती है जो जो इस तरह की मनगढ़ंत नहीं होती, वो उनके किसी तारीखी किरदार से मबनी होती है। फिर लोग जो है ना वो नस्ल दर नस्ल सीना बसीना वो कहानियां मुंतकिल होती रहती हैं। जिस तरह हमारे पास ये लीजेंड्स है, शशि पुनी का लीजेंड्स है, उमर मारी का लीजेंड्स है, सुनी माहवाल का लीजेंड है, हमारे पास दो दो सुमरों का लीजेंड है, हमारे पास ये सोहराब और रुस्तम का लीजेंड है। तो इस तरह के लीजेंड्स जो होती हैं, ये कहानियां होती हैं जो नस्ल दर जो होती हैं। इन द पैराबल्स, ये कहानियां होती हैं जो तकरीबन मजहबी क्रिश्चियनिटी वाले यूज करते थे, जिसमें वो कोई ना कोई इखलाकी सबक देना, कोई स्पिरिचुअल टीचिंग के लिए या इस तरह की चीजें सिखाने के लिए वो लोगों को ये देते थे। तो ये जो चीजें होती थी ये in the medieval fabula was a killer, this progenitors. Okay, so Caucasian Chaucers were the masters of art, and as such as the Chinese writers as Tao Can. ये वो राइटर्स थे, बुकेशो इटली का, चौसर लंदन का, और चाइना का जो ना वो था खैन। ये वो लोग थे जिन्होंने इस तरह की कहानियां लिखना शुरू की। बट द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी बिगन इन द मिड 19th सेंचुरी। मगर जो जदीद शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं वो हमारे पास 19वीं सदी के सेंटर में शुरू हुई, जिसमें एडगर एलन पो and was confirmed as a major genre of Mauspon, और मॉस्पोन फ्रांस के हैं, और टर्जेनेव चेखोव इन रशिया। ये वो राइटर्स हैं जिनको जदीद अगर हम शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो हमें फिर चेखोव, टर्जेनेव, मॉस्पोन और जो ना वो एडगर एलन पो को कंसीडर करना पड़ेगा, जबकि करीब में ये हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे। फिर अगर आप 20th century में जाएं, many 20th century writers like Kafka, who wrote nearly 80 short stories using a remarkable variety of length, style, and theme and technique, favored the form on account of the concentrations and atmospheric potential, such as Dutch writers James Bashir। तो ये वो राइटर्स हैं। काफका तो शॉर्ट स्टोरी का एक किस्म का डेमी गॉड राय, और उसने शॉर्ट स्टोरी को जिस तरीके से लिखा शायरी जो ना। तो अब शॉर्ट स्टोरी किस प्रोसेस से गुजरी है, अब इसका ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहाँ पे शॉर्ट स्टोरी गुजरी है। द फॉर्म दैट बैक्स टू द ओरल ट्रेडिशंस ऑफ अ टेल, जिस तरह पुराने जमाने में लोग कथा या कहानियां बताते हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। रिटन टेल्स इमर्ज इन पोएटिक फॉर्म्स। फिर जो लिखी हुई कहानियां शुरू में शायरी में लिखी गई। चौसर का अगर आप कैंटरबरी टेल पढ़ेंगे तो वो पूरा कैंटरबरी टेल्स या जो है ना वो नाइट्स टेल या उसमें जितने भी कुछ है वो सब कहानियां, लेकिन वो शायरी में लिखी गई थी। फिर बुकेशोस अगर जो है डेक्यूमेंट को अगर आप देखें तो ऑफन साइटेड एज द प्रीकसेस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। बुकेशोस का ये किताब जो है उसको हम समझते कि ये शॉर्ट स्टोरी की इब्तिदा है या शुरुआत जो इब्तिदाई काम है। एज इज द फ्रेंच ट्रांसलेशंस ऑफ द थाउजेंड्स एंड वन नाइट हियर, वन नाइट्स ओके 1001 साल रातें जो हैं जो ना ये भी इसमें जो ना वो बहुत रोल प्ले करती थी। जिस तरह हमारे यहाँ अरेबियन नाइट्स की जो है ना वो बात होती है, मुमताज दमसाज होती है, 4 दरवेश होती हैं, तो इस तरह की कहानियां थी जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, जो ना आगे चल के शॉर्ट स्टोरी की बुनियाद रखी। सो शॉर्ट स्टोरी रियली बिगिंस टू इमर्ज एज फॉर्म इन द 19th सेंचुरी, लेकिन एज ए फॉर्म के तौर पे ये 19th सेंचुरी आए में जो है ना ये इमर्ज हुई, और अर्ली कलेक्शन ऑफ फोक स्टोरीज दैट पेव्ड द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जॉनर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ओके, असल में जो इस तरह फोक स्टोरीज होती थी, ये जो जिस तरह मैंने आपको बताया उमर मारी, शशि पुरुवे, बला बला बला, इन कहानियों ने शॉर्ट स्टोरी की बुनियाद रखी। पहले हम इस तरह की कहानियां बनाते थे जिसमें किरदार वगैरह वो जो सुपर नेचुरल होते थे, रियल नहीं होते थे, हकीकी नहीं होते थे, कभी जिन कभी परियां कभी इस तरह के किरदार होते थे। लेकिन एक जमाना आया जब हमने कहा कि हमने बहुत इनका बात की, अब आओ इंसान की बात करें, इंसान के प्रॉब्लम की बात करें, उसके रियल इश्यूज की बात करें। तो ये शॉर्ट स्टोरी में एक बहुत बड़ा जो है वो
revolution आया है, इनकलाब आया है कि जब हमने इंसान की बात की, when we start to talk about human being. So this is where the short story is going to turn the turtle, and it has started to talk about the reality of life. And now we don't talk about dragons and serpents and these fairy tale characters, but we talk about a human being, and the problems are genuine, their real problem, and their conflicts are real, their issues are real, and the solutions are taken from that practical life. Okay, so we started to these things. Okay, overall, in the 19th century, created a market demand for the short fiction stories between 3000 and with the passage of time, you know, जो हम आगे चले गए. और एक बात ये भी था कि शुरू में हम एग्रीकल्चर दौर में रहते थे 15वीं-16 सदी के अंदर. तो यूरोप में एग्रीकल्चर दौर में था, तो वहाँ पे दिन को काम करते थे, रात को ड्रामे देखते थे. तो शेक्सपियर वाला ये जो पीरियड था जिसमें ड्रामे देखने का जो पीरियड था, उसके बाद भी लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम था, तो नावल लिखा गया, नावल पढ़ा गया, बड़े तवील किस्म के 2-2000 3-3000 पेजेस के नावल लिखे पढ़े गए और लोगों ने उसको पसंद किया. लेकिन आगे चल के जब हम यहाँ पहुंचे हैं, पर्टिकुलर जब हम इंडस्ट्रियल दौर में आए, तो इंडस्ट्री का एक बड़ा मसला ये था कि इंडस्ट्री में हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इन शॉर्ट को ज्यादा देर तक जो है इनको हम जो है वो देख सकें, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे या 8-8 घंटे बैठकर हम जो है रीडिंग कर सके. तो टाइम मुख्तसर हो गया. इसी टाइम ने फिर जो ना ड्रामे के अंदर वन एक्ट प्ले को इंट्रोड्यूस कराया और फिक्शन के अंदर शॉर्ट स्टोरी को ज्यादा फरोग दिया, क्योंकि आप 1-2 घंटा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आपने कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली और आपने उस चीज को कवर कर दिया. सो दीज वर द थिंग्स. जिस शॉर्ट स्टोरीज की अक्सर जो लेंथ है वो 3000 से लेकर 15000 वर्ष तक इन्होंने उसको मुख्तसर की. और उसमें शॉर्ट स्टोरी peaks as a form in the mid of 19th century, 13th century, and while still respected, it has become less marketable than its close cousin, the novel. Okay, अभी भी वो 20वीं सदी में भी उसको देखा गया और बहुत ज्यादा उसकी मार्केट में अहमियत रही है, लेकिन फिर भी जितना नावल को फरोग मिला मार्केट के अंदर, इतना शॉर्ट स्टोरी को एक हद तक तो मिला, लेकिन बाद में वो नहीं मिला. अब वो ने क्या कहा था कि शॉर्ट स्टोरी इन विच नथिंग at all happens is an absolute impossibility. A short story in which nothing at all happens is an absolute impossibility. ये नहीं होगा कि आपके प्लॉट में कुछ भी ना हो और आप उसको कहेंगे. शॉर्ट स्टोरी मस्ट बी exceptional enough to justify its telling. शॉर्ट स्टोरी जो भी बताना चाहती है वो जल्दी में अपना वो हक बताए. और therein lies the problem. कोई एक प्रॉब्लम है to reconcile the average with the uncommonness which alone makes it natural. उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे आकर जो है एवरेज जो है ना वो अनकॉमननेस आपस में आकर रिकंसाइल करते हैं, जहाँ से हमें कोई नया सबक मिलता है. देखिए हम जब क्यों लिटरेचर लिख रहे हैं, कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई मकसद के लिए, तो हम शॉर्ट स्टोरी के अंदर कोई एक ही पहलू को टच करते हैं, लेकिन उसमें हम कोई एक ऐसा वाक्य करके दिखाते हैं कि जो लोगों को सिखाने में मदद देता है, उनको जो है समझाने में मदद देता है. तो ये चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिगार्डिंग ए शॉर्ट स्टोरी. अब जब आप जाते हैं कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी में हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शॉर्ट नॉवेल. जो नावल की होती हैं वो शॉर्ट स्टोरी में भी होती है. पहली बात है कंप्लीट प्लॉट हो एंड डेवलप कैरेक्टर्स. उसमें प्लॉट हो, उसमें कैरेक्टर हो जो काम करें, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस, क्योंकि आपके पास शॉर्ट स्टोरी में स्पेस कम है, ज्यादा पेजेस नहीं है, दे टेंड टू बी स्ट्रक्चर्ड क्वाइट डिफरेंटली फ्रॉम नॉवेल्स. लेकिन क्योंकि आपके पास थोड़ा स्पेस है, थोड़े वर्ड्स हैं, तो आप इनके प्लॉट और कैरेक्टर्स को थोड़ा चेंज करके शॉर्ट स्टोरी में रखते हैं. उसमें आप ज्यादा तवालत तवील नहीं करते. तो जो बेसिक इसका पहली बात है इंटीग्रिटी. ओके, इट शुड फॉर्म ए कोहेरेंट होल. ओके, कहानी पूरी जामे और एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए. दिस मीन्स दैट एवरीथिंग, लैंग्वेज, डायलॉग एटसेट्रा शुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्ट. ओके, कि उसमें जो डायलॉग है, जो लैंग्वेज है, वो सब मिलकर उसी थीम को सपोर्ट करें. नावल में रैम्बल, बट शॉर्ट स्टोरी का रैम्बल से मतलब होता है कि आप उस नावल में तवील तवालत कर सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में आप ऐसा नहीं करेंगे. काम की बात मुख्तसर करके आपने उसको समाप्त करना है. इकोनॉमी, देयर कैन नॉट बी अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन. देखें ये बात ध्यान रखें कि आप स्टोरी के अंदर एक किरदार को 2-2, 3-3 पेजेस पे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते. बस फौरन किरदार को उतारें, उसको इंट्रोडक्शन हो और आगे वो अपना काम करना शुरू कर दें. अगले लम्हे हमें पता चले कि कैरेक्टर हैज गॉन इनटू एक्शन. ताकि जल्दी आप उन चीज़ों को जो है उसमें रियल एक्शन में दिखा सकें, और जो आपकी स्टोरी थीम्स एंड मूड से नीड टू बी एस्टैब्लिश. जो आप एक्शन दिखाना चाहते हैं, जो थीम दिखाना चाहते हैं, फौरन आपका कैरेक्टर उसमें चला जाए और उसमें कवालत न करे. जब एफएफएनए की बात होती है, तो देखिए बेसिकली शॉर्ट स्टोरी के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है. फिर आए वो जो तजाद है जो आप दिखाना चाहते हैं,
either the characters learn something, या तो एक जो कहानी आपने लिखी उसमें से किरदार कोई चीज सीखे, are their lives change decisively, या उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आए जिससे आप सीखे, be the reader learn something, या हम पढ़ने वालों को कोई मिले भले किरदार ना सीखे, गलत काम करे और भटक जाए और आखिर में किसी ट्रेजेडी का शिकार हो जाए, अब उसको तो कोई कुछ नहीं मिला, आपने सीखा कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है. सो हैव अ परसेप्शन चैलेंज इन सम वे, या तो कोई ऐसी बात जो आप सब समझते हो ये सही है और शॉर्ट स्टोरी के थ्रू वो आपकी उस परसेप्शन को चैलेंज करे और दिखाए कि ये चीज गलत है. तो असल बात है शोइंग. शोइंग का मतलब क्या होता है? दिखाना. तो जेम जॉयस ने सही कहा था कि ये जो इस कहानी जो होती है वो असल में एक फनी है, इसमें हम कुछ चीज दिखाते हैं कि क्या चीज जो है ना वो वहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाट. और उसके बाद जब गुड शॉर्ट स्टोरी है नीड्स टू गिव अ रीडर फीलिंग्स ऑफ क्लोजर, जब उसका खात्मा हो तो वहाँ पे हमें कोई चीज सीखने को मिले. तो ये चीजें जो होती हैं दीस आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड स्टोरी. अब आते हैं कि इसमें जो है ना वो सॉरी दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी. अब जब हम देखते हैं कि उसके जुज कौन से होते हैं, तो पहली बात है कि शॉर्ट स्टोरी के अंदर सेटिंग होती है. सेटिंग से हमारी क्या मुराद है? सेटिंग से मुराद है कि ये कहानी कहाँ पे शुरू हो रही है, उसकी क्या प्लेस है, क्या टाइमिंग है, वेदर सीजन क्या है, सोशल कंडीशंस क्या है, मूड ऑफ क्या है, तो किस लोकेशन पे वो चीज हुई है. दिस इज कॉल्ड सेटिंग. शहरों की बात है, मार्केट की बात है, देहात की बात है, पहाड़ों की बात है, जंग की बात है, अमन की बात है, रिश्वत की बात है, नशे की बात है, कोर्ट की बात है, कचहरी की बात है. तो कहाँ पे किस सेटिंग में वो कहानी शुरू होती है, वो उस चीज को देना. उसके बाद हम आते हैं प्लॉट में. प्लॉट क्या होता है? जो इवेंट होते हैं दूसरे को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक प्लॉट बनता है, और एक जो ऑर्गेनाइज प्लॉट होता है वो लॉजिकल होता है. एक इवेंट दूसरे इवेंट पे, एक बच्चा है गरीब है, फिर पढ़ नहीं सकता, वो मजदूरी करता है. मजदूरी तब कराए चुके, पढ़ नहीं सकता, पढ़ क्यों नहीं सकता? चूंकि गरीब है. एक चीजें कनेक्ट होती है, फिर आगे चल के वो उस प्लॉट में से उन वाकयात से कुछ एक चीजें जो ना बन पाती हैं जो कि उसको जरूर तरतीब देती हैं. तो असल जो एक प्लॉट होता है, प्लॉट कैन बी रेड एज वन सिटिंग. देयर आर 5 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लॉट. पहली बात है प्लॉट में इंट्रोडक्शन होता है, जब हम अपनी कहानी को, अपने वाकयात को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसमें कैरेक्टर्स वगैरह की इस चीज की शुरुआत होती है कि हो क्या रहा है. फिर उसमें एक काम एक्शन होता है. अब कैरेक्टर वगैरह आपने इंट्रोड्यूस करा लिया, अब एक कोई ना कोई एक्शन वहां पे शुरू होगा, और आगे चल के वो जो ही एक्शन चलेगा तो उस एक्शन की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी. In the stories are revealed, okay, even between the introduction and the climax, there is a kind of a conflict between these characters. And later on, वो जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा. दैट विल रीच द क्लाइमेक्स. ओके, व्हेन वी फाइंड दैट दिस कुड बी conflict between the hero or the society, or hero or other person, hero or nature, hero or fate, hero and circumstances. किसी भी किस्म का इनका तजाद हो सकता है. वो तजाद अपने क्लाइमेक्स उरूज पे पहुंचेगा, फिर वहां से फॉलोइंग एक्शन आस्ता आस्ता वो मसाइल, वो तजाद हल होना शुरू होंगे. फिर आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता पहले विलन वाली साइड स्ट्रांग होती है और आस्ता आस्ता हीरो वाली साइड स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, और आखिर में आप देखेंगे कि उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या रिजॉल्व हुआ और क्या नतीजा निकला. तो इवेंट्स बिटवीन क्लाइमेक्स एंड जिनेमा. क्लाइमेक्स क्या होता है? जब एक चीज अपने उरूज पे जाती है, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा ये वो उरूज पे जाता है. जिनेमा क्या होता है? जहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ जाता है. तो उसके दरमियान का जो है ये फॉलिंग एक्शन होता है. उसके बाद जिनेमा होता है. जिनेमा वो जगह होती है जहाँ पे फाइनली नावल आकर खत्म होता है. ड्रामा, नावल, ये शॉर्ट स्टोरी आकर खत्म होती है, जो उसका जो वो एंड होता है. तो आप ये याद रखिएगा कि जो प्लॉट शॉर्ट स्टोरी में भी यूज होगा, प्लॉट नावल में भी यूज होगा, प्लॉट ड्रामा में भी यूज होगा. इट इज हेल्पफुल to consider climax as a threefold phenomena. The main characters receives new information. अब क्लाइमेक्स पे जाता है तो वहाँ पे एक मेन कैरेक्टर्स को कोई नई मालूमात मिलती है. एक्सेप्ट दिस इंफॉर्मेशन, या उसको एक्सेप्ट करता है, रियलाइज करता है, इट बट डजंट नेसेसरली एग्री विद दैट. ओके, और तीसरा एक्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन, और उन पे अमल करता है, और उससे फिर एक बेहतर नतीजा निकाल कर वो जो है कोई कामयाबी हासिल करता है. तो इस तरीके से चीजें होती है. अभी आपके सामने एक सिंपल प्लॉट की है, देखेंगे ये इस तरीके से जो है ना वो सिंपल एक प्लॉट जो है ना वो होता है. उसको लेट मी अब अगर आप इस प्लॉट को देखें तो ये देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ से प्लॉट की शुरुआत होती है, एक्सपोजिशन होती है. यहाँ से आप अपनी किसी भी कहानी को, किरदार को शुरुआत करते हैं कि एक ज़माने की बात थी, ये हुआ. उसके बाद आप इंसिडेंट्स में चलकर आप किरदार वगैरह को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि उसमें अली रहता था, उसके साथ ये हुआ, फिर फलां हुआ, आगे चलकर उसका इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट वो झगड़ा हो गया. उस झगड़े की वजह से इंसिडेंट्स विच काज कॉन्फ्लिक्ट हो गए. फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, फिर आस्ता आस्ता कॉन्फ्लिक्ट में सस्पेंस पैदा होते हैं.
پھر جو ہے نا کمپلیکیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, ڈیفیکلٹی آف کیریکٹرس ہے وہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے نا موٹیویشنس واٹ کازز دا کیریکٹرس ٹو بیہیو دا وے دے ڈو, پھر ان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ اس کرائسس کو کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے. پھر یہ جو ہوتا ہے یہ پورا جو ہے اپنا ایریا ہے جس کو ہم رائزنگ ایکشن کہتے ہیں. تو ایکسپوزیشن میں کرداروں کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, انیشیل ایکشنز کے اندر اس کانفلکٹ کو بتایا جاتا ہے, اس کے بعد ہم رائزنگ ایکشن میں جاتے ہیں جہاں پہ کہانی کو مزید جو ہے نا اس کے جو ہے نا جو کانفلکٹ کو دکھایا جاتا ہے, اس کے اندر سسپینس پیدا کیا جاتا ہے, کرداروں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے. پھر وہ کانفلکٹ اپنی ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے, دس از کلائمیکس, دا ہائیسٹ پوائنٹ آف انٹینسٹی ان دا اسٹوری. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو فالنگ ایکشن ہوتا ہے جہاں پہ اس چیز کی کانفلکٹ کا حل, اس کلائمیکس کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ مسئلہ حل ہو کر جنیما پہ آ کر فائنل ختم ہوتا ہے, وہاں پہ شاید اسٹوری کا اینڈ ہوتا ہے. سو دیٹ از واٹ از means the structures of plot. okay, اب جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ تضاد ہوتا ہے کردار کے درمیان, صورتحال کے درمیان, سچویشن کے درمیان. اسے کانفلکٹ ہوتے ہیں. کانفلکٹ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ اسٹرگل ود a force outside oneself. okay, اب دو کانفلکٹ ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل ہوتے ہیں, ایک انٹرنل ہوتے ہیں. اب جو ایکسٹرنل کانفلکٹ ہوتے ہیں وہ ایک کیریکٹرز کے آؤٹر فورس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور انٹرنل کیریکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے اپنے وجود کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو دیٹس ویٹ اپنے غم کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, فیصلوں کے ساتھ, ٹیمپرامنٹ کے ساتھ, رویے کے ساتھ. So we have a two type of conflicts there. okay, اب جب آپ ان کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں there are 4 dimensions of conflict. ایک جگہ ہوتی ہے جب انسان کے ساتھ لڑتا ہے, ایک اچھا انسان برے انسان کے ساتھ لڑتا ہے, that's a conflict. ایک ہوتا ہے کہ ایک کردار جو ہے نا وہ circumstances کے ساتھ لڑتا ہے, and they are playing with the circumstances. okay, so circumstances یہ جو ہے وہ کلاسیکل نیچر کا جو ہے نا وہ کیریکٹرز جو ہے نا وہ کانفلکٹ ہوتا ہے. آپ قسمت سے لڑ رہے ہیں, آپ حالات سے لڑ رہے ہیں, آپ باہر کی صورتحال سے لڑ رہے ہیں. That's called that's man versus circumstances. تیسرا ہوتا ہے man versus society. انسان سماج کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. سماج جو کردار ہے وہ سماج کے اندر کوئی ایسی کسٹم, کوئی ایسی صورتحال, کوئی ایسی چیزوں سے لڑ رہا ہے. ایک کیریکٹر ارلی میرجز کے خلاف اسٹرگل کر رہا ہے, ایک جہالت کے خلاف اسٹرگل کر رہا ہے, اس طرح کی چیزوں کے خلاف کر رہا ہے, لائک دیٹ. اور ایک کانفلکٹ ہوتا ہے مین ورسز ہمسیلف. یہ پیور سائیکولوجیکل جو ہے نا کیریکٹر ہوتا ہے جس میں کردار جو ہے نا اپنی ذات کے ساتھ, اپنے اندر کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اپنی موٹیویشن کے ساتھ, اپنے ڈیسیژن کے ساتھ, اپنی ہیبٹس کے ساتھ, اپنی کسی خامی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس قسم کے کانفلکٹ ان شارٹ اسٹوریز میں سامنے آتے ہیں. Then we have this there are 2 meanings for the word characters. okay, the persons in a work of fiction, the characteristics of a person. okay, اب 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کیریکٹرز کی بات کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ وہ ہے کیا, اور پھر اس کی خصوصیات کیا ہیں. تو جب آپ شارٹ اسٹوریز یوز few characters, okay, one character is clearly central to the story with all major events having to some importance to this character. She is the protagonist. ایک کردار جو مرکزی کردار ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم پروٹاگونسٹ کہتے ہیں. اور ایک جو ہوتا ہے جو اس کے اپوزٹ کرتا ہے جس کو آپ ولن کہتے ہیں, ہم اس کو اینٹاگونسٹ کہتے ہیں. تو پروٹاگونسٹ اور اینٹاگونسٹ یہ ایک دوسرے کے جو ہیرو آپ کا پروٹاگونسٹ ہو جائے گا, اینٹاگونسٹ جو نا آپ جو نا ہو جائے گا ولن. اگر شاہ رخ خان انسان ذات کے لیے لڑ رہا ہے تو پروٹاگونسٹ ہے, اور امریش پوری انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے نشہ بیچ رہا ہے تو اسے اینٹاگونسٹ. So now what are the characteristics of a person? okay, جب آپ ایک کردار کو دیکھتے ہیں تو اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے. In order for a story to seem real to the readers, okay, پہلی بات ہے جو آپ کا کردار وہ ریئل ہو, اس characters must seem real. Characterization is the information the author gives the readers about the characters. okay, پھر جو ہمیں جو معلومات دیتا ہے وہ ریئل لگتی ہے, حقیقی ہوتی ہے, وہ ایسی من گھڑت نہ ہو کہ جس سے آپ کو اسی کردار پہ, اسی کے اس کام سے جو ہے نا وہ آپ کو ڈاؤٹ ہو. سو دس از ویری مچ امپورٹنٹ. ہز ہر فزیکل اپیرنس, اور وہ کیا سوچتا ہے, وہ کیسے بیہیو کرتا ہے, کیا کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, اور وہ دوسروں کو وہ چیز کیوں کروانا چاہتا ہے, کیوں ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں اسی کیریکٹرس کی کیریکٹرسٹکس میں شامل ہوتی ہیں. اب کیریکٹرس جو ہوتے ہیں, کردار جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک کردار ہوتے ہیں جن کو وی کال دیم ایز اے انڈیویجول کیریکٹرس. ایک وہ کردار ہوتے ہیں جو انڈیویجولس ہوتے ہیں, مینس وہ راؤنڈ ہوتے ہیں, مینی سائیڈڈ ہوتے ہیں, کمپلیکس پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا, ان کو طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کے مختلف رخ ہوتے ہیں ایک ہی کردار کے اندر. تو ایک یہ کردار ہوتا ہے. ایک ڈیولپنگ کردار ہوتا ہے جو ڈائنامک ہوتے ہیں, مینی سائیڈڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, دیٹ چینج. وہ کردار آپ شروع میں اچھے ہوتے ہیں, پھر خراب ہو جاتے ہیں, یا خراب ہوتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ کردار ہوتے ہیں جو اس طریقے سے ڈیولپنگ کردار ہوتے ہیں, جو پھر یا اچھے یا برے ہوتے ہیں. تیسرے کردار اسٹیٹک کردار ہوتے ہیں. ان کو ہم جو ہے وہ
स्टैटिक किरदार वो होते हैं जो जिस तरह इनको फ्लैट कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। इस तरह जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है ना, जिसको हम राउंड कैरेक्टर्स कह रहे थे, जिसका कोई पता नहीं होता है, वो कोई भी रुख अख्तियार कर ले, तो जो स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जो जो ना वो सेम होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, या अच्छे होते थे शुरू से लेकर अच्छे होते हैं, बुरे होते थे शुरू से लेकर बुरे होते हैं, तो दे आर स्टीरियोटाइप, ओके, हैव वन और टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट नेवर चेंज, ओके, वो उनकी तब्दील नहीं होती, they remain same what they are, okay, and this where so they अब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास कौन सा कैरेक्टर्स है। फिर जब राइटर कहानी हमें सुनाता है तो दे यूज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें कहानी सुनाते हैं, वी कॉल इट द पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बात होती है इनोसेंट आई, जो ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द आईज ऑफ ए चाइल्ड। कभी कभार किसी बच्चे की आंख से हमें कहानी सुनाई जाती है, तो वो किरदार बच्चा होता है जो हमें बता रहा होता है। दूसरा होता है कभी कभार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करके, ये क्या करते हैं, स्टोरी इज टोल्ड सो दैट द रीडर फील्स एज इफ ही इज इनसाइड द हेड ऑफ ए कैरेक्टर, ओके। इसमें हम ये कहते हैं राइटर आपको अपने किरदार की दिमाग में ले जाता है, फिर किरदार जो कुछ सोच रहा होता है उससे आपको कहानी का पता चल रहा होता है, इसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं। तीसरा फर्स्ट पर्सन यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन ये होता है जिसमें किरदार जो है एक कैरेक्टर से हमें कहानी बताता है, वो कैरेक्टर जो उसके अंदर होता है वो कहता है कि मैं कराची जा रहा था, मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये फर्स्ट पर्सन है। आई इसमें यूज होता है, आई, मी, वी, ये यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कहानी बताते हैं। और फिर ओमनीसेंट होते हैं। ओमनीसेंट वो होता है आज जिसको आप थर्ड पर्सन जो है ना वो नैरेटिव भी कहते हैं। यहाँ पे सेकंड पर्सन नैरेटिव भी होता है जो बहुत कम यूज होता है, कि जो यूज से अगर आप यूज करें तो ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन सेकंड पर्सन नैरेटिव भी होता है कि आपने कहा था ये हुआ, फिर आपने कहा था ये हुआ, फिर आपने कहा था ये हुआ, लेकिन इस तरह कहानी चलाना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन राइटर कभी कभार यूज करते हैं। तो तीसरा जो है ना हमारे पास ये ओमनीसेंट, चौथा जो ओमनीसेंट है, ओमनीसेंट के अंदर हम ये करते हैं कि एक राइटर देखे ना, ये एक राइटर हर चीज के बारे में जानता है और वो हमें बता देता है कि एक बादशाह था, बादशाह में ये था, किरदार हो रहा है अली था, अली ने सोचा कि मैं ये बेचूंगा तो ये होगा, फिर ये होगा। अब देखो वो अली की बात बता रहा है, अली नहीं बता रहा, अली उसके हाथ में है। तो अब अगर अली की वो लिमिटेड हमें रुख दिखाता है तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हम लिमिटेड कहते हैं। He doesn't tell everything about that thing, but the limited things जो वो हमें दिखाना राइटर चाहे वो हम देखते हैं, जो ना दिखाना चाहे वो हम नहीं देखते। लेकिन तीसरा इसका तरीका होता है ओमनीसेंट होता है, जिसके अंदर वो जो भी ऐसा समझो कि राइटर एक किरदार जहां भी जा रहा हो और जो है ना वो उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और हम हर चीज को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। That's what is omniscient objective when you want to know everything about the characters. अब कैरेक्टर्स के बाद आता है थीम। थीम क्या होता है कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, आपका क्या मतलब है उस शॉर्ट स्टोरी की मदद से आप लोगों को जो सिखाना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं अबाउट एजुकेशन, अबाउट लाइफ, अबाउट फीमेल प्रॉब्लम्स, अबाउट अर्ली मैरिजेस, अबाउट एजुकेशन। सो व्हाट्स योर थीम, ओके, और उससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, जो लोग आप समझते हैं कि जो लोगों को समझना चाहिए, या आप उनको ये कहते हैं लव इज ब्लाइंड, और बिलीव इन योरसेल्फ, और पीपल आर अफ्रेड ऑफ चेंज, डोंट जज बुक्स बाय इट्स कवर, ओके, इस तरह की कोई भी चीज जो आप उनको दिखाना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग, ओके। नाउ दीज आर एक्स्ट्रा आइडियाज व्हाट यू कैन राइट अबाउट to know how a short story could be analyzed। उसको एनालाइज करने के लिए आपके पास ये क्विक चेक लिस्ट है। जब भी आप किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो आप ये देखें कि व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स, ओके, सेटिंग उसकी क्या है, वेयर, व्हेन, कहाँ पे स्टोरी हो रही है, कैरेक्टर्स कौन है, फिर आप देखें उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर देखें कि उसमें प्लॉट इज द हाउ इज द कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, थीम इज द व्हाई, क्यों राइटर ने ये कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाया और क्या आपको सिखाना चाहता है। तो इस चीज की मदद से यू कैन एनालाइज एनी शॉर्ट स्टोरी एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी and what ultimately literature represents life. So definitely the good short story writer, they take their theme from the real life and they want to teach us something good, or they want to point out some gray areas of the society so that we could develop this world positively and properly. So I think this is very comprehensive to grasp that what a short story is. I would end my class here. In the next class, we will talk about another genre like novel, like drama, and we have already discussed poetry. This is how we would be developing and covering all the topics. Whatever topics we have covered, and you have received the material. First, listen the video, read the material, then you may go with your assignment and write in your own language. Okay. Thank you very much. Take good care of yourself. Bye.